डिस्पैशनेट होना चाहिए मार्केट। आपके हिसाब से कौन से इन्वेस्टर्स को AIF में इन्वेस्ट करना चाहिए? AIF का ब्यूटी क्या है कि इट इज अ सूडो म्यूचुअल फंड मॉडल। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अमेरिका का पावर आता है उसकी करेंसी से, और कोई रीजन नहीं है अमेरिका को सुपर पावर। तो मेरा यही ड्रीम है, मतलब यही एक सपना है कि INR एक टाइम में जाके हमारा रिजर्व करेंसी दिख सकता है। इन्वेस्टिंग इज अ फुल टाइम जॉब। आप ये मत सोचिए कि ये तो मैं बीच में मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने स्टॉक ले लिया और फिर मैं भूल गया। फुल टाइम जॉब है, तो लीव इट टू प्रोफेशन। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं अगर जो अपने डैडी को जाके बोलता कि डैडी मैं लोन लेके मैं बाइक लेने वाला हूँ, तो मेरे डैडी एक खींच के मेरे मुंह पे लगा देते, बोले बेटा। इन वन वर्ड, व्हाट डज मनी मीन टू यू? दिसंबर का क्वार्टर इज लुकिंग लाइक अ गुड क्वार्टर। वर्स्ट इज ओवर, वर्स्ट इज गुड टाइम्स आर अहेड। गुड टाइम्स आर अहेड। क्या निफ्टी 30,000 होगा नेक्स्ट 1 ईयर? जी देखिए, एक चीज है कि आपको हेलो एवरीवन, मैं हूं यश डागा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड मैनेजर से जिन्होंने पिछले 3 डेकेड्स में इंडियन मार्केट्स के उतार चढ़ाव को ना सिर्फ देखा है बल्कि उसमें अपॉर्चुनिटीज भी बनाई हैं। ही इज करंटली द MD एंड CEO of Helios Capital Asset Management India Private Limited and one of the most respected voices in India's investing ecosystem, Mr. Dinsha Irani. We are going to decode how he looks at wealth creation, market, and the future of India's growth story. Dinsha sir, thank you so much for taking your time out. I am really excited to learn about your personal journey, the road ahead for the market, and the investor behavior from your horse's mouth. Okay, thank you so much. Thank you for having me on your show. Yeah. So you have transitioned from being a research advisor to a fund manager and now the MD and CEO of Helios. How has this evolution shaped your perspective on managing people and on investing? Lovely question. Actually, very different question. So basically, when I was a research analyst, I realized, by the way, every step I've become younger. Okay. Because I got something to do something new, right? Okay. And whenever you do something new, your brain gets a reset, and that reset makes you younger. Okay, so Right. that's one thing I want to clarify. Secondly, when I was a research analyst, which was a long time ago, Right. I used to, keep on researching stocks, thinking that okay, where is the end point? Right. Where do I pull the trigger? Right. But when I became the fund manager, I realized that is where you have that advantage, that edge, because the fund manager gets this feeling in his gut saying that okay, this is it. I don't want to look further. I know I'm comfortable. I've done some basic work in this stock. I want to buy this stock now, and probably I'll do the research later as the things progress, as the things mature. You do research. Right. So how do you overcome that as a fund manager? Then what you do is you start off with a small position. And as you get comfort with your stock, with your numbers, with whatever the management is talking about, you keep upping the weight in that in the portfolio. Okay? Right. That's one way. And when I became the CEO and MD of my firm, which I first thought that, oh God, why am I leaving my CIO job? But then I realized that I'm looking at a bigger horizon out here. Right. It's not only fund management, because every one of these guys report into me. Right? Not only the CIO. Earlier, I used to be the CIO, but I used to report into the MD, right? And then I realized, okay, the CFO reports into me, the CEO. So it's like, now I know how businesses are run. Right? So now I can have a different perspective. So I really pity those technical guys who look at a line and take a call on a fund or on a stock, right? And I wonder that this line is the culmination of so many different departments that is coming together to make it into our organization. So that's why I love this job, and that's why I said I've become younger after this. Sir, आपके बारे में इट्स लाइक आप समीर अरोरा के साथ बहुत क्लोजली काम किए हो, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर्स इन द कंट्री. नो डाउट. आप उनके साथ आपकी पार्टनरशिप कैसे डिफाइन करते हो? अच्छा, एक्चुअली समीर और मैं प्रॉब्ली जब चालू किए थे तब शायद आई वाज
मैं चालू किया था 94 में, बाय द वे उनके साथ मैं उनको जानता था 94 से। 94 में मैंने एक इक्विटी रिसर्च आउटफिट चालू किया था। आई वाज द हेड ऑफ रिसर्च देयर। 15-16 लोग थे मेरे नीचे। तो आई यूज्ड टू सर्विस समीर, उनको मैं रिसर्च आइडियाज़ जाके देता था। एंड यूज्ड टू लव आवर आइडियाज़ बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि आपके बिल्कुल ही अलग होते हैं आइडियाज़, एक रिसर्च वे में आते हैं आप, और थीसिस वगैरह लिटरली बना के देते हैं आप मुझे। तो हम बहुत पसंद था उनको हमारा रिसर्च। तो जब हमने वो बंद किया तो आई जॉइन समीर। और जब मैंने समीर को ज्वाइन किया अलायंस कैपिटल में 2000 बिगिनिंग में, 2000 के बिगिनिंग में, तो तब वो मेरे बॉस थे और वो इंडिया में भी नहीं थे। 98 में उनको अलायंस ने शिफ्ट कर दिया था सिंगापुर, बिकॉज उनको इमर्जिंग एशिया हेड बना दिया था। तो मैं जब ज्वाइन किया तो मैं इमर्जिंग एशिया, कंज्यूमर्स और फार्मास्यूटिकल्स देखता था, एंड वो मेरे बॉस थे। तो पता नहीं कहाँ जाके दोस्ती ज़्यादा हो गई और बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप चले गया। और एक्चुअली जब हमने दोनों ने छोड़ा अलायंस, और तभी डिसाइड किया था कि हमें छोड़ना है, क्योंकि अलायंस उस समय जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है वो बेचने की सोच रहा था। हाँ। तो हमने कहा यार ये मज़ा नहीं आएगा हमें, तो हम खुद का ही चालू करते हैं। और खुद का फिर दोनों ने जॉइंटली चालू किया। और यही है कि गुड पार्ट अबाउट समीर इज कि वो इतने ओहदे पे पहुंच गए लेकिन फिर भी यहाँ पे है। राइट, इज डाउन टू अर्थ। और कभी ऐसा नहीं आपको जायज़ करेंगे, लाइक किसी जिसको मिलेंगे ना उसकी जब बात में बात करेंगे, उसकी ज़बान में बात करेंगे, राइट, नॉट द लैंग्वेज बट हिज लेवल ऑफ कंफर्ट। राइट, तो वो पहुंच जाते हैं। तो विच आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम समीर। सो ही इज वेरी लाइक सिंपल एंड वेरी सिंपल, वेरी नो ईगोज, राइट, नो नथिंग। सो सर अब यू हैव बीन इन द मार्केट, अब 30 साल से मार्केट में। हाँ जी, आपने काफी हाइज देखे, काफी लोज भी देखे, बहुत देखे। तो कौन सी ऐसी गलती या फिर कोई मोमेंट था आपके लाइफ में जो आपको सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग लेसन देके गया है? आई थिंक जो GFC था, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का, वो हमें बहुत ही बड़ी एक लेसन देके गया। इनफैक्ट उस समय तक हम सोचते थे कि आप कंसंट्रेटेड होने चाहिए पोर्टफोलियो, मतलब हमारे पास कोई 20 एक स्टॉक का पोर्टफोलियो हुआ करता था उस समय। और हमने कहा कि यही तरीका है, और आपको स्मॉल कैप डिस्कवरी स्टॉक्स चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, और थोड़े लार्ज कैप भी चाहिए। पर हमारा क्या था कि हम इतने कन्विंस होते थे अपने स्मॉल कैप आइडिया में कि सीधा पोजीशन ही बड़ी लेते थे। और उसको राइड आउट करते थे। तो वो सब तो बहुत बढ़िया हुआ। 2007 तक तो फिनोमिनल था हमारा फंड, मतलब रिटर्न बिल्कुल ही जोरों का रिटर्न था। पर ये 2008 आया, जनवरी फिर भी अच्छा था, फरवरी में चालू हुआ। तो जो पूरे टाइम हमने क्या सोचा, एक्चुअली पहले सीखे कि ये स्मॉल कैप से ज़रा दूर रहना चाहिए, इतनी पोजीशन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटे से चालू करो और फिर कन्विक्शन के साथ। तो पहला लेसन होता। दूसरा लेसन ये था कि जब ग्लोबली मार पड़ती है तो आप कोई भी स्टोरी बना लो कि इंडिया तो अलग है, इंडिया का तो स्टोरी अलग है, उधर तो मार पड़ेगी। लाइक हमारे पास नंबर 1 पोजीशन हमारी तब भी HDFC बैंक हुआ करती थी, और HDFC बैंक आई थिंक उस साल 50% शायद गिरा था वो साल में। पर आप देखिए HDFC बैंक के रिजल्ट, एवरी क्वार्टर वो 30% ग्रोथ दिखाते थे, YOY। राइट, ठीक है, बाद में 20 हुआ जाके, उस समय तो 30% ग्रोथ था। तो हमने बोला यार देखो ये इतना बढ़िया नंबर आ रहा है, तो कैसे आप उसको बेच सकते हो, इतने बढ़िया नहीं कर सकते हो, और बाजार के साथ गिर गया। तो हमने यही डिसाइड किया कि डिस्पैशनेट होना चाहिए आपको मार्केट में, ग्लोबल ट्रेंड्स को हाथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है। राइट, एक जगह मार पड़े और आप चलें, वो नहीं होने वाला। वो शायद एक आध बार हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपको मार पड़ती है। बहुत रेयरली होता है कि इंडिया मार्केट परफॉर्म अलग से करेगा और दूसरे और करेगा भी तो अगली बार, जैसे अक्टूबर तक, लास्ट सितंबर तक इंडिया मार्केट अलग ही चाल चल रहा था। अभी देखिए इंडिया मार्केट फिर से अलग ही चाल चल रहा है, दूसरी साइड में बाकी सारे चल रहे हैं, हम गिर रहे हैं। अब यूएस मार्केट ज्यादा है। हाँ जी, तो हम चले ही नहीं। सो फंड मैनेजर भी गलती कर सकता है और उससे सीखना भी बहुत जरूरी है। सीखना जरूरी है। सो एक्चुअली मैं सब में हमेशा ये बोलता हूँ कि बाजार भगवान है, वो हमेशा आपको नए नए सबक सिखाता है। अच्छा फंड मैनेजर जल्दी सीख जाता है, राइट। जो खराब है वो सीखता ही नहीं है लाइफ में, राइट। और जो ढीला है वो लेट से सीखता है, लेकिन मार पड़ती है बेचारे इन्वेस्टर को। तो जो जल्दी सीखे वही बेस्ट है। राइट। हम सोचते हैं हम शायद जल्दी सीख जाते हैं। एक्सेप्टिंग द मिस्टेक इज आल्सो यस वेरी मच। आप अपने आप को भगवान नहीं समझ सकते। राइट।
सर मार्केट में ग्रीड भी होता है, फियर भी होता है। ऐसे टाइम पे लाइक सिंस यू आर मैनेजिंग थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ पब्लिक मनी, राइट। जब ग्रीड और फियर के टाइम पे आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हो कोई स्टॉक्स, या फिर वो स्टॉक से बाहर निकलने का आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सी देखिए, हमारा है ना बहुत सिंपल है। हमारा एक सिलेक्शन पैरामीटर है, हम बोलते हैं एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग, हमारी फिलॉसफी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट नहीं करते, पहले रिजेक्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली जब ये ग्रीड एंड फियर के टाइम आते हैं ना, तो मार किस में पड़ती है, जहाँ पे वैल्यूएशंस हाई हैं और मैनेजमेंट वीक है, या तो ग्रोथ ट्रेंड्स इतने डिफाइंड नहीं है। वो उस समय के लिए हाई आपको ग्रोथ दिखा दिया है, लेकिन आगे चल के ग्रोथ नहीं दिख रहा, वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं आते, और वो ग्रीड के टाइम में भागते रहते हैं, फियर के टाइम में सबसे ज्यादा वही गिरते हैं। Right. ठीक है, तो हम ये दोनों साइड अवॉइड करते हैं बाय दिस एलिमिनेशन प्रोसेस। तो मेरा जो एलिमिनेशन प्रोसेस देखें आप, तो हर एक लेवल पे हम बैड फैक्टर्स पे निकालते रहते हैं। थीम बैड हो गई, आउट हो गया, डायनामिक्स आउट हो गए, खराब डायनामिक्स आउट हो गए, डिसरप्शन है तो आउट हो गया, वैसे मैनेजमेंट खराब है तो आउट हो गया, वैसे करके लास्ट फैक्टर वैल्यूएशन का होता है, उसमें भी वैल्यूएशन खराब है तो आउट हो गया। तो वैसे करके जो फनल में आता है ना, वो फॉर्चुनेटली हमारे लिए हमने यही नोटिस किया, और आपने शायद हमारे फंडों में भी देखा होगा, जब बाजार गिरता है हम कम गिरते हैं, और जब चलता है तो ज़्यादा चलते हैं। ये सब इसी की वजह से, और किसी की वजह से नहीं है। इसलिए हमें काफ़ी कंफर्ट होता है हमारे टाइम में, एंड वी नेवर गेट कैरी अवे बाय ग्रीड और फियर। दैट इज़ व्हाट आर आई थिंक आर कंसिस्टेंसी जो हमारी आपने देखी है हमारे परफॉर्मेंस में, वो इसी की वजह से और किसी की वजह से नहीं है। So, मैंने काफी लोगों को देखा कि मैं बेस्ट स्टॉक्स ढूंढूंगा, लेकिन हीलियोस ऐसा है कि मैं गलत स्टॉक्स हटा दूंगा, बेस्ट अपने आप मिल जाएंगे। अपने आप मिल जाएंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। सब बोलते हैं कंपाउंडिंग होना चाहिए फॉर अ 25-year-old बिगनर। कंपाउंडिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है इन रियल लाइफ? सी, कंपाउंडिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप जब स्टॉक लें, तब आप ये नहीं सोच सकते कि ये स्टॉक तो मेरा कंपाउंडिंग होने वाला है, स्टॉक में सब मल्टी बैगर, मैं 10 साल से पकड़ के बैठूंगा। नहीं होता है, नहीं होता, क्योंकि आप जिस दिन वो सोचेंगे ना, तो आप लेजी हो गए, राइट। आप बिल्कुल ही आलसी हो गए, आपको आगे देखना नहीं है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, हाउ टू ओवरकम, हम ऐसे सोचते हैं कि देखो एवरी 3 मंथ्स, जैसे स्मॉल कैप में तो एवरी 3 मंथ्स या तो शार्प मूवमेंट हो गया प्राइस में, तो तब, और एवरी 6 मंथ्स इन लार्ज कैप्स, जहाँ पे अगर जो प्राइस मूवमेंट हुआ तो उसके पहले हम बोलते हैं अपने एनालिस्ट को कि भैया जाके आके समझाइए हमें कि आपने दिलवा दिया, स्टॉक हमारे पास है और भाव भी चल गया है, तो क्या करें। ऐसा ऐसा समझाइए कि हम फ्रेश एक व्यू ले रहे हो स्टॉक पे, लेने का या बेचने का। राइट। तो अगर जो हमें पसंद आया तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नहीं पसंद आया तो बेच देंगे। और ऐसे ही एवरी 3-6 मंथ्स करके एक लॉन्ग टर्म बनता है, और उसी में आपको बेस्ट कंपाउंडिंग मिलती है। और कंपाउंडिंग री रेटिंग के बगैर नहीं मिलेगी। द स्टॉक हैज टू री रेट। अगर जो वो सिर्फ अपने अर्निंग्स ग्रोथ को फॉलो करेगा, तो आपको कभी 100 बैगर आपकी लाइफ टाइम में नहीं मिलेगा। राइट। बट 10 ईयर में आपको 100 बैगर चाहिए, तो यू हैव टू हैव दैट री रेटिंग ऑफ दैट स्टॉक। दैट्स व्हाई कंसिस्टेंसी भी चाहिए आपको, और वही कंसिस्टेंसी मिलती है ये एनालिसिस से। शॉर्ट टर्म कंसिस्टेंसी बढ़ती रहेगी, और स्टॉक भी री रेट करता रहेगा। मैं 10 का पी 12 हो जाएगा, 12 का 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और तब जाके आपको कंपाउंडर्स मिलेंगे। रिव्यूइंग इज आल्सो वेरी यस, वेरी ट्रू। रेगुलर रिव्यू ऑफ योर स्टॉक इज अ मस्ट। So in stock, in mutual funds, like review is a must. Yes, it's a must. It's a must. उल्टा म्यूचुअल फंड का तो मैं यही बोलता हूँ कि जहां मैनेजर चर्न कर रहा है, और चर्निंग के बाद उसको आप देख रहे हैं कि एनएवी उसकी बढ़ती रहती है, तो वो तो फिर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है आपके लिए, कि वो इंटरनली खुद का रिव्यू करे जा रहा है। राइट। एंड ही इज चेंजिंग हिज पोर्टफोलियो, कटिंग हाई वैल्यू, गेटिंग इनटू वैल्यू। तो वैसे करके आपको वही रिव्यू होता है उसमें। वो तो है। अगर कोई 3 इन्वेस्टर्स आए, 25 साल के, 40 साल के और 55 साल के, और आपको कोई पूछे कि सर मेरा आइडियल एसेट एलोकेशन मिक्स क्या होना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा? डेट इक्विटी की बात कर रहे हैं आपकी? डेट इक्विटी इररिस्पेक्टिव, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स। सी देखिए, हमारा यही कहना होता है कि एक्चुअली वी आर नॉट बिलीवर्स ऑफ डेट। 55 क्या, मैं तो 60 साल का होने वाला हूँ अगले साल, बट मेरा सारा पैसा लगा हुआ है इक्विटी में। ओके, सबका अपना अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है, और रिस्क आपको अनड्यू नहीं लेना चाहिए। राइट। आपको रिस्क लेना चाहिए जितनी आपकी क्षमता हो उतना लेना चाहिए।
तो अगर जो 25 साल का आदमी आ रहा है मेरे पास, बच्चा लड़का आ रहा है, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि देखिए, आप जो आपके मन में ऐसा लगे कि यू कैन कीप असाइड फॉर फ्यूचर, वो इक्विटी में डालिए, राइट। बिकॉज उधर से कंपाउंडिंग आपको कभी नहीं मिलेगा। 45 ईयर का आएगा तो उसको भी मैं यही बोलूँगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी अर्निंग कैपेसिटी अगले 15 साल का है। राइट। तो इसे मैं उनको ये बोलूँगा, इक्विटी में ही रहिए, डेट में रहना है तो आपको अगले मतलब आपकी रिटायरमेंट के बाद का सोचना है तो आप डाल दीजिए 5-10%, बट इक्विटी इज द बेस्ट। राइट। और जो 55 साल के आएंगे उनको ये बोलूँगा, देखिए आपकी तो अभी 5 साल ही रह गए हैं कमाई के, तो आप ऐसा कीजिए कि आपके पास जितना भी डेट में है उसका आधा आप इक्विटी में कर दीजिए। आधा इक्विटी में वही डेट में जितना है अभी उतना आधा इक्विटी में कीजिए, और वो डेट उतना रखिए साइड में जितना आपके रिटायरमेंट के लिए आपको चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी इक्विटी में रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म एटलीस्ट इंडिया में आई हैव नो डाउट कि हमारा मार्केट, एक तो जीडीपी ग्रोथ तो नॉमिनल रियल तो 6-6.5% चलने वाला है अगले 10-1 साल के लिए, पर जो नॉमिनल जीडीपी है तो आप 3.5-4% अगर जो लगाएंगे इन्फ्लेशन, तो 10.5 के आसपास आपको जीडीपी ग्रोथ दिखेगा नॉमिनल। और हमारा इंडेक्स जो रिफ्लेक्ट करता है जीडीपी को, बट उसमें एग्री सेक्टर नहीं होता। एग्री इज द वन विच ड्रैग्स डाउन द जीडीपी, जो 2-3% पे ही ग्रोथ है। तो ये जो इंडेक्स है वो 12-13% आराम से चल सकता है। तो इसलिए यू हैव टू बी, मतलब डेट तो उतना रिटर्न आपको कभी देगा नहीं, प्रॉब्ली इन्फ्लेशन कैचअप ही होगा वहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा, पर इक्विटी इज द वे टू गो फॉर any investor at any age, right, depending on his risk taking है obviously। मार्केट सबके लिए सेम होता है, लेकिन सिर्फ बहुत कम परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स है जो एक्चुअल वेल्थ बना पाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि जैसे आपने बोला, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और एक्चुअली मैं भी यही सोचता हूँ कि क्यों ऐसे होता है कि जो इन्वेस्टर अपने आप को बड़ा सटा हुआ समझता है वो भी गलती कर लेता है। पर ये गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप बाजार से ज़्यादा जानते हो। राइट। अगर जो आप समझ लो कि देखो मार्केट ने ये वैल्यूएशन दिया है एक स्टॉक को, तो कोई रीज़न है। आप कोई नई चीज़ डिस्कवर नहीं कर सकते अनलेस नया लिस्टिंग है एंड आपको लगता है कि नहीं इसका वैल्यूएशन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर जो लिस्टेड स्टॉक है पहले से, और मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज की तारीख में भी आपको 8-9 के पी पे मिलते हैं और लोग सोचते हैं बहुत सस्ता है। Right. कि 8-9 का पी है, बेचारा ग्रोथ रेट दिखाते थे 10-11% ग्रोथ रेट दिखाते हैं, पर उसके आगे नहीं जाते हैं। राइट। उसके आगे आपको देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट की बैकग्राउंड क्या है, वो जो डीलिंग्स होती है मैनेजमेंट की विद द इनसाइडर डीलिंग्स वगैरह, वो कैसी हैं, कितना होता है। तो ये सब सवाल आपको पूछने पड़ते हैं और तब जाके आपको लगता है कि नहीं यार, ये 8-9 जो पी दे रहा है बराबर दे रहा है मार्केट। आपका रिकॉर्डिंग खत्म होगा तब नाम ही बता दूंगा उसको का, बट एनीवे, सो दैट इज हाउ इट इज। सो यू हैव टू कीप डिगिंग डीपर टू अंडरस्टैंड। आप कभी ये मत सोचिए कि आप बाजार से ज़्यादा जानते हैं और आपको पता है कि ये स्टॉक बढ़िया करेगा क्योंकि मुझे पता है। वो नहीं होता है, मार्केट को सब पता होता है, आप सीख रहे होते हैं उससे। तो यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। और मैं बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर ये सीख जाता है बहुत पहले, वही एक सटा हुआ इन्वेस्टर रहता है और वही आपको कंपाउंडिंग करके देगा। सो टॉकिंग अबाउट वन ऑफ योर बेट्स, जब जोमेटो 40 रुपए पे था, हाँ जी, पूरी दुनिया बेरिश थी। हाँ जी, हीलियोस वाज बुलिश ऑन दैट। राइट। आपने वो स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया और आपने कन्विक्शन कैसे बनाए रखा? अच्छा, तो एक्चुअली आप उसकी तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास। हमने एक्चुअली हमारे को आईपीओ में एंकर के लिए हमारे को अप्रोच किया गया था बैंकर ने। हाँ। और हमने मना कर दिया था। तो हमने बोला नहीं, हमें कंफर्ट नहीं है, ये लॉक इन होता है एंकर में। तो हमारा तब ऑफशोर फंड था, डोमेस्टिक फंड नहीं था, ऑफशोर फंड था उस समय, डोमेस्टिक आने वाला था। राइट। पर म्यूचुअल फंड वगैरह, पीएमएस वगैरह सब थे हमारे पास, तो उसमें तो हमने किया ही था। तो हमने उस समय नहीं लिया, हमने आईपीओ में एक्चुअली अप्लाई किया। हाँ। वहाँ पे ऑफशोर में, और हमें अलॉटमेंट मिला आईपीओ के टाइम। लिस्टिंग के दिन ही वो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो समीर जी, मुझे याद है दोनों की बात हुई 3-1 बजे, 3:30 बजे बाजार खत्म होता है। तो मैं बोला क्या सोच रहे हो आप? तो बोले यार बहुत हो गया, मैं तो सोच रहा एक आध दिन रखूंगा, पर अभी लग रहा है कि बहुत हो गया, डबल हो गया है। और वैसे भी हमें कंफर्ट नहीं था पहले। जैसे मैंने बोला ना 8 पैरामीटर्स है हमारे, तो वहाँ पे फ्लैशिंग रेड था वैल्यूएशन का। राइट। तो हमने बोला देखो वैल्यूएशन में हमारे कोई कंफर्ट है नहीं, चलो निकाल दो। पहले दिन ही निकाल दिया और उसके बाद तो स्टॉक अगले दिन और ऊपर गया।
तो हमने बोला यार चलो ठीक है, देख लेंगे, जब नीचे आएगा तब देखेंगे। हमें नहीं पता था कि इतना नीचे आ जाएगा। पर एनीवे, दूसरा हमने ये देखा उसमें कि जो प्रमोटर थे उस समय बड़े पी के मोड में चल रहे थे, प्राइवेट इक्विटी के मोड में ही चल रहे थे। बिकॉज वो बोले कि देखो, मैं ना प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टाइम की बात करूंगा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करूंगा, पाथ आगे का क्या है, कितना मेरा मार्केट है एड्रेसेबल, वो सब मैं बातें करूंगा। तो प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा। और दूसरा, मैं एनालिस्ट से नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ साल में एक बार कॉल करूंगा और वो भी मेरे को जो ठीक लगे सवाल वही मैं जवाब दूंगा, ऐसे करके था। तो हमने बोला यार ये तो अभी भी प्राइवेट इक्विटी के मूड में चल रहे हैं। फिर हुआ क्या, स्टॉक गिरता रहा, गंदे रिजल्ट आते रहे, गिरता रहा। और जून, मुझे याद है महीना भी, जून 2022 का महीना था। तो उस समय उन्होंने अपना, उबर ईट्स ने अपना बिजनेस बेचा था जोमेटो को, और उसके बदले में उनको शेयर्स मिले थे। राइट। तो उबर के शेयर, सॉरी उबर, हाँ उबर ही था। तो उनके शेयर मार्केट में फ्लोट हो रहे थे फॉर सेलिंग। राइट। और उस दिन सर्किट डाउन था, लिमिट डाउन था। वो 40 रुपये में हमने लिया था, वैसे 52 में लिया था हमने। पर लिमिट डाउन था वो शेयर वहाँ पे। तो लिमिट डाउन, फिर आई थिंक ऑब्वियसली जो प्रमोटर थे उन्होंने सोचा ये तो बहुत हो रहा है। तो उन्होंने एक 14 या 15 पन्ने का एक उन्होंने पेपर निकाला, पार्ट टू प्रॉफिट्स करके, और Q&A फॉर्मेट में था, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया कि देखो, मैं ऐसे अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनाऊंगा, मैं अपने इबिटा मार्जिन मेरे ऐसे बढ़ेंगे, दिस इज हाउ आई इंक्रीज माय मार्जिन फ्रॉम रेस्टोरेंट्स वगैरह, ऐसे करके एक एक सवाल करके जवाब देके दिखा रहे थे कि कहाँ तक उनका प्रॉफिट कब आने वाला है। तो हमने बोला नहीं, अभी ये सुधर गए हैं, अभी इनको समझ आया कि मार्केट को क्या चाहिए। तो हम क्यू में लगे थे। उसके बाद सर्किट अप हो गया था, लिमिट अप हो गया उसी दिन। राइट। तो हम क्यू में लगे टू बाय दैट स्टॉक, और फाइनली हमें 52 रुपये में मिला, 50-52 ऐसे ही आसपास मिला था। एंड काफ़ी हद तक वहीं घूम रहा था, तो बहुत मौका मिला। द पॉइंट इज कि आपने अर्ली आइडेंटिफाई किया। बाय द वे, पोटेंशियल ये अपने फूड डिलीवरी का ग्लोबली प्रोवन है। इसलिए हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म कंपनी जब आप ले रहे हैं, जोमेटो इज अ प्लेटफॉर्म कंपनी, राइट। जब प्लेटफॉर्म कंपनी लेते हैं तो आपको चंद सवाल का जवाब देना पड़ता है। एक सवाल ये होता है कि ये कन्वीनियंस दे रहा है, कन्वीनियंस है, मास कन्वीनियंस है, मतलब सबको चाहिए। तीसरा, ये एनकैशेबल है कि नहीं, एनकैशेबल है बिल्कुल, क्योंकि वो चार्ज कर सकते हैं कन्वीनियंस के लिए। और चौथा जो सवाल है जिसका जवाब ना होना चाहिए, वो ये था कि इजीली रेप्लिकेबल है कि नहीं मॉडल, राइट। रिप्लेस कर सकते हो इजीली। Right. उसका जवाब ना था, क्योंकि ग्लोबली आप देखिए 2 ही प्लेयर हैं, हर एक कंट्री में 2 ही प्लेयर होते हैं फूड डिलीवरी में। राइट। राइट। और हमें लगा कि ये 2 ही अभी सर्वाइवर हैं, जोमेटो और स्विगी, और फूड डिलीवरी में तो यही 2 सर्वाइवर हैं। तो कन्विक्शन बिजनेस में तो बहुत था, वैल्यूएशन में नहीं था। तो जैसे ही वैल्यूएशन ग्रीन हुआ, जब ये हमने देखा पार्ट टू प्रॉफिट, तो वैल्यूएशन ग्रीन हो गया, हमने बोला ये टाइम है लेने का, और कन्विक्शन के साथ लिया और लेते रहे, और अभी भी ले रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि बड़ा ही लंबा रेस का घोड़ा जो बोलते हैं ना, वो है ये जोमेटो। सर, हीलियोस लास्ट 2-3 साल से आईटी स्टॉक्स पे काफी कॉशियस है, ये स्टांस कब बदलने वाला है? एक्चुअली हम लोग, हमारा कॉशन केम अबाउट, इफ आई रिमेंबर राइट, जनवरी ऑफ 22। राइट। तब से हम कॉशियस हो गए थे काउंटर पे। थोड़ा हमने एक्सपोजर फिर से चालू किया था। उस समय तो रीज़न ही अलग थी। उस समय रीज़न था राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स गोइंग अवे, राइट। वो रीज़न था हमारा। और वो हमने चेंज किया प्रॉब्ली जुलाई 2024 में चेंज किया, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स आए थे तब, एंड हमने बोला, अब बाय द वे हमारे हिसाब से टीसीएस बेलवेदर है इस इंडस्ट्री का, वो हमेशा आगे का आपको रास्ता दिखा देता कि क्या हो रहा है। तो हमें लगा थिंग्स आर चेंजिंग, राइट। पर उसके बाद आ गया एआई, तो हम काफ़ी अपने आप के सवाल उठा रहे थे। और जब मैनेजमेंट को मिलते थे तो वो ही बोलते थे कि नहीं, वो तो हमें असिस्ट करेगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ाएगा हमारी, ये वो ऐसा करके बोलते थे, विच वॉज ऑब्वियसली एक हद तक बराबर भी था। पर हम जब ज़्यादा डिग इन किए, थोड़े और लोगों को मिले, कंसल्टेंट्स को मिले, तो फरवरी में जब हमने काफ़ी कंसल्टेंट्स को मिले थे उस समय, और हमें ऐसे लगा कि नहीं, ये तो डिसरप्टर बन रहा है इस इंडस्ट्री के, राइट। क्योंकि जो 3.5 डेकेड्स का, मतलब 35 साल का जो ये इंडस्ट्री का मॉडल है, वो मॉडल ऐसा है कि रेवेन्यू मॉडल के इतने लोग होते हैं पर आवर, इतना टाइम स्पेंड करते हैं ये लोग पर पर्सन, और ये रेट पर आ रहा है हमारा,
राइट राइट और हमने ये देख लिया कि एआई के आने से एक तो नंबर ऑफ जो लोग हैं, जो जितने आदमी चाहिए श्रिंक हो वो श्रिंक हो गए, राइट और उनका जितना घंटे स्पेंड करते हैं वो उसके ऊपर वो भी कम हो रहा है। तो ये रेट कितना एडजस्ट हो सकता है इन दोनों पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन को कंपेंसेट करने के लिए। तो वो हमें वहाँ पे कंफर्ट नहीं लगा और हमने बोला नहीं, ये तो डिसरप्टर ही रहेगा, अभी रीसेट होना चाहिए यहाँ पे। कि आप जो पिरामिड भी है, जैसे अभी इस बार आपने देखा टीसीएस में 12,000 लोग हो गए हाँ ले ऑफ कर दिए। राइट राइट वो सीधे बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले लोग थे, मिडिल वाले भी थे, और ये मैन पावर पिरामिड में ही पूरा काम चलता था आईटी इंडस्ट्री का। कि यही पिरामिड जो एक्चुअली आईफिल टावर की तरह होता था, बोलते पिरामिड थे लेकिन ऐसे ऊपर से पतला और नीचे से मोटा ऐसे होता था। तो वो जो मोटा है वो अभी श्रिंक हो रहा है, और वो जो मोटा था वो सस्ते भाव पे था। उनका जो रेट था बेचारों का, वो प्रोग्रामर्स का सस्ते भाव पे था। तो वो जब कम हो रहा है तो आपका मैन पावर कॉस्ट तो बाउंड टू इंक्रीज है। तो अभी इसलिए हम सोच रहे पहले रीसेट होने दीजिए इंडस्ट्री, फिर बाद में देखेंगे। अभी तो हमें कोई जल्दी नहीं है उसमें। जल्दी नहीं है हाँ जी। सर 2 या 3 चीज जो रिटेल इन्वेस्टर्स, वेल्दी इन्वेस्टर्स या अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स से सीख सके ड्यूरिंग वोलेटाइल मार्केट या फिर ड्यूरिंग बेरिश मार्केट। जी देखिए, एक चीज़ है कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। एक्चुअली यही सबसे बड़ा जो है वो आई थिंक एक उद्देश्य होता है कि जब बाजार गिर रहा है, जब फियर आता है, द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज सेल। आपको अगर जो कन्विक्शन है अपने स्टॉक में तो आप वेट कीजिए, उल्टा एवरेज करने का टाइम आता है आपका उस समय। तो वो आपको लेकिन कन्विक्शन होना चाहिए स्टॉक में, नॉट अ स्टॉक जहाँ पे आपने लिया है सोच के कि हाँ उसने बोला था मुझे लेने को, अभी आधा हो गया भाव मैं ले लेता हूँ, वो नहीं। आपको खुद का कन्विक्शन होना चाहिए, तभी जाके आप वो कर सकते हैं। और इसीलिए रिसर्च इज पैरामाउंट। जो हमारी एलिमिनेशन थियरी है उसमें आप नॉर्मली ऐसे 50-1% गिरता ही नहीं हमारे स्टॉक। नहीं गिरते हैं जब बाजार 50% गिरता है तो वो 20-30% गिर जाते हैं, पर वही होता है, वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप क्वालिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एट अ वैल्यू। मतलब हमें जब पूछते हैं ना लोग कि आप ग्रोथ लेते हैं कि वैल्यू लेते हैं, हम बोलते हैं हमेशा ग्रोथ एट द वैल्यू। राइट वही हमारा स्टाइल है लेने का और वही आगे चल के रहेगा। बट क्वालिटी एश्योर्ड होती है उसमें क्योंकि ऑफ द फनल इफेक्ट। तो इसलिए आपको पैनिक गिरते बाजार में नहीं करना चाहिए, और कमेंसुरेटली उल्टा जैसे फियर होता है तब लेना चाहिए, और जब ग्रीड होता है तब बेचना चाहिए, वैसा होता है। और चलते बाजार में आप ये मत सोचिए कि मेरा तो स्टॉक चलता ही रहेगा, अगर कन्विक्शन तो करिए। लाइक हमारे तो केस में इतने डिस्पैशनेट होते हैं। एक स्टॉक हमने लिया था यही रिसर्च करके 2200-2300 रुपये में लिया था हमने। ये था मुझे याद है जून 2020 में लिया था, और कोविड के बाद का। तो इट वॉज लाइक अ कोविड रिलेटेड स्टोरी। जून जुलाई में ही लिया था हमने, नाम नहीं बताऊंगा। और वो स्टॉक जनवरी में वो हो गया था 8,000 रुपये। तो हमने सोचा यार ये, हमने क्या किया, रिवर्स डीसीएफ किया। नॉर्मली डीसीएफ फॉरवर्ड होता है राइट, तो आपका टर्मिनल ग्रोथ होता है उसमें। तो हमने बोला यार अभी टारगेट प्राइस लगाओ, बाय द वे जब तक ये डीसीएफ कर रहे थे 9,000 का भाव हो गया था। तो हमने बोला 9,000 का भाव लगा दो एज अ टर्मिनल वैल्यू, एंड मतलब आपका एनएवी। और आप देखिए कि टर्मिनल ग्रोथ आपको कितनी चाहिए टू सेटिस्फाई दैट वैल्यू। राइट तो उसमें टर्मिनल ग्रोथ की 12-13% निकली थी, विच इज अनहर्ड ऑफ। तो हमने बोला यार ये तो सेंस ही नहीं है, तो आप बेच दो। पूरा बेच दिया था हमने और 8 महीने में इतना कमा लिया था हमने। तो हम बड़े डिस्पैशनेट होते हैं। द वैल्यू शुड मेक सेंस टू अस, वी नेवर गेट कैरीड अवे बाय मार्केट मूव्स। Right. So yeah, that is the biggest lesson. Profit booking is really important. Important. And panic, do not panic for unnecessary reasons. So ऐसा अगर खराब है तब बेचिए, पर अगर जो आपको लग रहा है कि आपका स्टॉक में वैल्यू और ज्यादा दिख रहा है, जब फियर है बाजार में, तो लीजिए। वो रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्ट इक्विटी में कर ही नहीं पाते। नहीं, वो नहीं कर पाते, उनको उसके म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। बाय द एक और चीज मैं बता दूं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टिंग इज अ फुल टाइम जॉब। आप ये मत सोचिए कि ये तो मैं बीच में मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने स्टॉक ले लिया और फिर मैं भूल गया। फुल टाइम जॉब, तो लीव इट टू प्रोफेशनल्स। राइट, दैट इज माय ओनली एग्जैक्टली। सो there's a lot of debate on social media regarding passive versus active investing. अच्छा, ये हमारा फेवरेट है। आपका टेक क्या है उसमें? देखिए, पैसिव का ओनली आर्ग्यूमेंट इन फेवर इज कि सस्ता है। राइट, फीस बहुत कम है। पर मैं ये समझा दूं आपको, वो फीस कम रीजन की वजह से, एक रीजन की वजह से। एक रीजन ये है कि जब कोई इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि मुझे ये ईटीएफ में डालना है, ईटीएफ ही हो गया ना पैसा, राइट, ये ईटीएफ में डालना है मुझे, तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर है ना वो फंड मैनेजर बन गया है।
क्योंकि उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सारे स्टॉक्स चाहिए, राइट, ये स्टॉक चाहिए, ये प्रोपोर्शन में, ठीक है, जो ईटीएफ में वो उन्होंने डिसाइड कर लिया। अभी जो ईटीएफ रन कर रहे हैं ना, वो ब्रोकर बन जाते हैं फिर, ब्रोकर। क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट कर रहा है आपका ऑर्डर ऑन योर बिहाफ। पहली चीज वो है, इसीलिए सस्ता होता है, दिमाग नहीं चल रहा वहां पे, वो अपने हिसाब से कर दिया। दूसरा, ईटीएफ एक अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करता है, राइट, तो उसमें ट्रैकिंग एरर हमेशा रहता है। तो आप इंडेक्स का रिटर्न देखिए, ये मत सोचिए कि मेरा रिटर्न भी इतना होगा, उतना ही होगा, इंडेक्स से कम ही होगा, क्योंकि ट्रैकिंग एरर कैसे होता है कि आप जब स्टॉक चल जाता है इंडेक्स में तब आप लेते हैं, और जब गिर जाता है तब आप बेचते हैं, वो ऐसे ही करके वेट एडजस्टमेंट होता है, राइट, तो इसलिए वो ट्रैकिंग एरर रहता है। दूसरा, इंडेक्स में ब्रोकरेज नहीं होता है, एसटीटी नहीं होता है। ईटीएफ जब एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर, उसको ब्रोकरेज देना पड़ता है, एसटीटी देना, तो भाव उसके वैसे ही बढ़ जाते हैं। और तीसरा, हमेशा ईटीएफ आप बाजार से लेते हैं, राइट, तो इसलिए हमेशा अंडरलाइंग इंडेक्स के साथ उसका कोई ना कोई डिस्काउंट रहता है। Right. तो ये आप ये बिल्कुल मत सोचिए आपको इंडेक्स का रिटर्न 10 है तो आपको 10 मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा, और कभी कभी तो 2-3% कम हो जाता है। अच्छा। सो इसलिए हमारे हिसाब से ETFs डोंट मेक सेंस इन अ मार्केट लाइक इंडिया। आप यूएस वगैरह की बात करें जहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होते हैं, तो शायद वहाँ पे इट मेक सेंस, वेरी मैच्योर मार्केट, तो इसलिए वहाँ पे मेक सेंस, बट इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे भी हम बोलते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, ETF इज द वर्स्ट वे यू कैन पुट योर मनी टू। अल्फा मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, अल्फा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, नेगेटिव अल्फा मिलेगा। यूएस मार्केट में भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं मिलता है, वहाँ पे भी नेगेटिव अल्फा होता है, बट बहुत कम रहता है वहाँ पे, कि वहाँ पे तो कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं, तो बहुत फास्ट ट्रेडिंग होती है, सो इसलिए, और वॉल्यूम भी उतना होता है। लास्ट 10 साल में इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर काफी बदला है, मतलब क्या डिफरेंस दिख रहा है लास्ट 10 साल और आज के? सी देखिए, मुझे याद है, मैं पहला चीज तो मैं अपने यूथ की बात करूं, मैं अगर जो अपने डैडी को जाके बोलता कि डैडी मैं लोन लेके मैं बाइक लेने वाला हूं, तो मेरे डैडी एक खींच के मेरे मुंह पे लगा देते, बोले बेटा लोन कभी लेना नहीं चाहिए, आप दूर ही रहो। तो एक सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि मॉर्टगेज, मतलब आप वहाँ पे तो यूएस में तो तब घर मॉर्टगेज करके आप गाड़ियां लेते थे, तो यहाँ पे दैट थिंग इज ओपनड अप, और आप आज का यूथ देखें, जो जनरेशन जी है या तो अल्फा है, जो भी आप बोले, वो तो मुझे याद नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए जब छोटे भी थे कि उनके लिए डिसाइड कर सकता था ये कपड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वो खुद ही डिसाइड करते थे। दे हैव देयर ओन माइंड, एंड दैट इज व्हाट एक्साइट्स मी अबाउट अ कंट्री। वी आर द यंगेस्ट, मतलब हमारी कंट्री में पॉपुलेशन, यंगेस्ट बिग पॉपुलेशन हमारी कंट्री में ही है, और कहीं नहीं है। चाइना की पॉपुलेशन इज एजिंग, हमारी तो यंगर बन रही है, और हमारे पास वो लीवे है 1935 सॉरी 2035 तक वी आर बी जस्ट हैविंग यंगर पॉपुलेशन। सो दैट इज व्हाट एक्साइट्स मी, कि दिस यंग पीपल जो बिलीव इन स्पेंडिंग, सेविंग, तो पहले, मतलब मेरे डैड बोले थे पहले सेव कर लो, बाद में सोचना, एफडी बनाओ, फिर बाद में बात करना, ये सब बातें होती थी। इक्विटी की तो बात ही नहीं होती थी, मुझे याद है मैं इक्विटी बोलता था, वो तो अरे वो तो गैम्बलर्स मार्केट है, तो ऐसा, तो वो सब एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हुए। दिस इज वेरी हेल्दी फॉर अ ग्रोइंग कंट्री लाइक इंडिया, सो दैट इज व्हाट एक्साइट्स मी। आई थिंक दैट इज द कंज्यूमर चेंज दैट वन हैज सीन। उनको कोई वो नहीं है, परहेज नहीं है कि मैं बोरो करके स्पेंड कर रहा हूँ, कार्ड पे मैं लेवरेज करके स्पेंड कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर रहा हूँ, कैश इकोनॉमी अभी कम हो गई है। All this is very positive for a country, for the growth of a country. So first time I got to know कि ये कैश, मतलब बोरो करके हम स्पेंड कर रहे हैं, that is positive. Yes. तो मतलब this is a completely different perspective. क्योंकि आप लेवरेज कर रहे हैं अपनी अर्निंग्स को। सो आप नॉर्मली क्या होता था, 100 कमाता था, मैं 100 ही खर्चा करता था, राइट, यहाँ पे, और वो एक हद तक आपको, हमारा पुराना सेइंग था ना, उतनी पाँव पसारो जितनी चादर बड़ी हो, वो एक तरह से उस समय यू फेल्ट क्या, ठीक है, आप हमारी मूवीज भी देख लें, ऐसे ट्रेंड चेंज होता रहता है, राइट। तो वैसे मैं सोचता था यार ये ठीक है, लेकिन कंट्री कैसे ग्रो होगी, मेरी सैलरी ग्रो होगी तभी ग्रो होगी, और आपकी सैलरी डिस्प्रोपोर्शनली तो ग्रो नहीं होती ना। तो इसलिए नाउ आपकी सेविंग्स पे आप लेवरेज करके कर रहे हैं, प्रोवाइडेड उसमें भी आपका उतने ही पाँव पिसा रहे हैं जितना आपका, तो आपको लोन भी उतना ही मिलने वाला है जितना आप सर्विस कर सकते हैं, राइट। तो वो भी एक तरीके से पाँव उतना ही पसार रहे हैं, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है दैट लेवरेजिंग, दैट रोटेशन ऑफ मनी इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। सो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो बोलते हैं ना, वो, सो दैट इज द मस्ट। What can India learn from China or Singapore model? सिंगापुर का मुझे ज़्यादा उतना नहीं है, मतलब आई डोंट हैव टू मच, वेरी कंट्रोल्ड कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, तो इसलिए दे कैन इजीली कंट्रोल
आउट देयर, पर चाइना से मुझे लगता है हमें बहुत सीखना मिल सकता है, क्योंकि चाइना 2018 तक चाइना भी टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं था। 2018 में क्या हुआ, जब ट्रम्प जी आए और 2.0 1.0 सॉरी ट्रम्प का, तब उन्होंने बोला कि मैं आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाने वाला हूँ, आपको चिप एक्सपोर्ट्स में कंट्रोल करने वाला हूँ। तो चाइना तभी सीख गया कि ये हमें कुछ बदलना पड़ेगा। डिपेंडेंसी, बहुत डिपेंडेंसी है उनका, टेक्नोलॉजी उस समय तो लिटरली 100% डिपेंडेंसी थी उनके यूएस के ऊपर। तो उन्होंने एक साइंटिफिक उन्होंने पेपर निकाला इंटरनली, कोई 36 या 37 एरियाज ऐसे आइडेंटिफाई किए जो वे दे वर वीक। मतलब आप सोचिए, द स्टेट लेवल दे एक्सेप्टेड कि हमारे में ये खामियां हैं, ये खामियां सुधारनी है। राइट। और उन्होंने सारे पूरे चाइना में सर्कुलेट किया वो पेपर, इंटरनेशनली सारे अपने सिटीजन्स को अपील किया कि आप जहाँ पे भी मदद कर सके आके करिए वगैरह। और उसके बाद आप देखिए क्या चाइना है। तो एक चीज हम ये सीख सकते हैं कि पहले आप अपनी जो खामियां हैं आइडेंटिफाई कर लीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि ये हमारी खामियां हैं, हमें ये भरनी है, और उसके हिसाब से आप वर्क कीजिए उसके ऊपर। आई डोंट थिंक, बाय द वे, चाइना का R&D स्पेंड उस समय उतना ही था जितना इंडिया का हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में उनका R&D स्पेंड इज इक्वल टू यूएस। ओके। लिटरली, मतलब यूएस का शायद $850 बिलियन का स्पेंड होता है, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, और चाइना का शायद 800 बिलियन के आसपास होता है। हमारा कुछ नहीं, हमारा 70-80 बिलियन डॉलर का स्पेंड है R&D में, विच इज नथिंग। तो हमें ये सब अप करके वी हैव टू नाउ कम्पीट विद, अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा हमें। अपने वीकनेसेस आइडेंटिफाई कीजिए, जहाँ पे आपकी खामियां वो ठीक कीजिए, और उसके ऊपर वर्क करके बिल्ड ऑन टेक्नोलॉजी। और अभी आप देखिए चाइना टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस देन यूएस, राइट। सो दैट। So do you think America will remain the superpower, global superpower for the next 25 years? उसका देखिए, अमेरिका का पावर आता है उसकी करेंसी से, Right. और कोई रीजन नहीं है अमेरिका को सुपर पावर रहने का। और करेंसी उसकी जो रिजर्व करेंसी बन गई है दुनिया में। एक्चुअली सबसे बेस्ट चीज निक्सन ने वही की थी उस समय कि उन्होंने डॉलर पैरिटी, डॉलर के साथ टैग निकाल दिया था उसका, रुपी को डॉलर का, और उसको गोल्ड के साथ टैग निकाल दिया था एंड लेट इट फ्लोट। तो वो सबसे बेस्ट किया था कि उसके बाद यू डोंट हैव टू हैव, मतलब आप उस समय तक क्या होता था, आप अगर जो डॉलर छाप रहे हैं, नए करेंसी छाप रहे हैं, तो उतने गोल्ड रिजर्व आपको बनाने पड़ते थे, लेना पड़ता था। पर इसके चलते बिल्कुल ही अभी अलग हो गए। और उसके बाद ही एक्चुअली देखिए, तब तक पाउंड यूज्ड टू बी द रिजर्व करेंसी, राइट। उसके बाद डॉलर पिक्ड अप बिकॉज़ नाउ इट वाज फ्री, राइट। तो वो डॉलर की जो डोमिनेंस है, जिस दिन वो नीचे जाएगी, यूएस का सुपर पावर भी कम हो जाएगा। और आई डोंट नो, मेरे को तो लगता है कि इंडियन इकोनॉमी जिस हिसाब से चल रही है, शायद मैं ना हूँ, पर आप बिल्कुल रहेंगे 70-80 में जाके शायद INR, मेरा यही ड्रीम है, मतलब यही एक सपना है कि INR एक टाइम में जाके हमारा रिजर्व करेंसी दिख सकता है। पर वी हैव टू बी बिग इनफ। तो आज की तारीख में तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। लोग बोलते हैं युआन नहीं हो सकता, क्योंकि युआन इज अ कंट्रोल करेंसी, एंड चाइना इज 28 ट्रिलियन, यूएस की इकोनॉमी है, चाइना इज अराउंड 21 ट्रिलियन, तो वो तो सब्स्टिट्यूट करने में बहुत मेहनत लगेगी। दूसरा, बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन इज सच अ वोलेटाइल करेंसी, कोई उसमें नहीं डालेगा, तो कोई भी सेंट्रल बैंकर उसमें नहीं डाल सकता एज अ रिजर्व। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अभी तक डोमिनेंस यूएस डॉलर का शायद तोड़ना मुश्किल रहेगा। So last couple of questions. हाँ जी। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का क्रेज काफी बढ़ रहा है, आपके हिसाब से कौन से इन्वेस्टर्स को AIF में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी देखिए, एक तो है, AIF का ब्यूटी क्या है कि इट इज अ सूडो म्यूचुअल फंड मॉडल। आप पर ट्रस्ट लेवल पे, तो आपका टैक्सेशन ट्रस्ट लेवल पे हो रहा है, तो आपको इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट ट्रस्ट लेवल पे यू आर पेइंग, राइट। और वो भी कैपिटल गेन्स आप दे रहे हैं ऑन द दिस थिंग। तो आप एक चीज वो है। दूसरा, 1 करोड़ का मिनिमम टिकट साइज रहता है, तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट इन्वेस्टर जिसके पास 1 करोड़ लॉक करने के क्षमता है, राइट। और तीसरा जो सबसे बड़ा आई थिंक एक फीलिंग होता है AIF इन्वेस्टर को, कि मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट मिलता है मैनेजर के साथ, राइट। बाद में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है उसमें, आपको आपका पोर्टफोलियो नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ मंथ एंड भी आपको मिलेगा, जो भी NAV डिक्लेयर होगी तब दिखेगा, वो भी रिक्वेस्ट पे मिलेगा, ऐसा करके होता है, नहीं तो आपको सिर्फ NAV मिलती रहेगी। तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि दोज इन्वेस्टर्स जिनके पास 1 करोड़ लॉक इन करने के हों और क्षमता हो, नॉर्मली ये 3-4 साल के लिए लॉक इन होता है, तो इसलिए। और दूसरा कि
फंड मैनेजर जिनको बात करनी हो रेगुलर, पूछना हो, ईगो सेटिस्फाई करना हो, उनके लिए बढ़िया है. अदरवाइज तो 10% ऑफ द पोर्टफोलियो इजीली कैन गो इन, कर सकते हैं. इजीली गो इन, इट कैन इजीली गो इन. सो लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या निफ्टी 30,000 होगा इन नेक्स्ट 1 ईयर? देखिए, मैं एक्चुअली अभी म्यूचुअल फंड रन कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ओपनली किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता, पर मेरे दिल में ऐसा लगता है कि अगर जो दिसंबर का क्वार्टर इज लुकिंग लाइक अ गुड क्वार्टर, सितंबर ऑल्सो अच्छा हो सकता था, लेकिन क्या है कि एक महीना हमारा जो जीएसटी में एडजस्टमेंट में हुआ वो थोड़ा वेस्ट हो गया वहाँ पे, इसलिए ये क्वार्टर जो है शायद आपको 60-8% ग्रोथ मिल जाए निफ्टी में, पर अर्निंग्स की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ. पर मुझे लगता है दिसंबर का जब वे डिमांड इज कंटिन्यूइंग, दिसंबर क्वार्टर लुक्स लाइक अ मिड टीन्स ग्रोथ क्वार्टर विच इज़ वेरी एक्साइटिंग. एंड जैसे मैं सबको बोलता था एफआई ने बेचा क्यों, एफआई ने बेचा क्योंकि उसने ग्रोथ कम होती हुई देखी, और ऑब्वियसली इंडिया अंडर परफॉर्मेंस करता रहा, डिमांड पिकअप नहीं हो रही थी. अभी डिमांड भी पिकअप हो रही है थैंक्स टू जीएसटी एंड आरबीआई मूव टू लिक्विडिटी बढ़ाना वगैरह, वो सब इंटरेस्ट रेट कट करना, तो वो पिकअप भी हो रहा है. तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि आराम से हमारा इंडेक्स ग्रो हो सकता है. अभी कितना होगा वो नहीं मैं कहूँगा मैं, बट आई थिंक वर्स्ट इज ओवर, वर्स्ट इज ओवर, गुड टाइम्स आ रहे हैं. गुड टाइम्स आर अहेड. सबसे खराब न्यूज़ हमने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, राइट. और आगे चल के आपको पॉजिटिव देखेगा. सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर तो हमारा जब ट्रम्प जी थोड़ा इंडिया की तरफ दया दृष्टि से देखेंगे तो शायद वो भी चला जाए, 25% जो पेनल्टी लगाई है हमारी, हाँ एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई है, वो भी चली जाए. तो वो सब तो बहुत ही पॉजिटिव इवेंट्स हैं जो आगे चल के देखेंगे. सर, रैपिड फायर क्वेश्चंस. अच्छा, वन वर्ड टू डिस्क्राइब इंडियन मार्केट्स टुडे. वन वर्ड. Yeah. बहादुर. बहादुर. यस. रेजिलिएंट. यस, रेजिलिएंट. अ बुक और हिंदी में कि इंग्लिश में, ये बता दीजिए मुझे. सर कुछ भी आपके हिसाब से. अ बुक और मूवी दैट चेंज्ड हाउ यू थिंक अबाउट मनी. वॉल स्ट्रीट. वॉल स्ट्रीट. यस. क्योंकि उसमें एक डायलॉग था, और बहुत ही बढ़िया डायलॉग था. उसमें पूछते हैं उसको, चार्ली शीन पूछता है कर्ट डगलस को कि हाउ मच इज इनफ, गिव मी अ नंबर, हाउ मच इज इनफ. तो कहता है मोर. मोर. सर, इफ यू वर नॉट अ फंड मैनेजर, व्हाट वुड यू बी टुडे? आई वुड हैव बीन मैराथन रनर फॉर श्योर, बिकॉज उसमें भी उतना ही परसिवेरेंस रहता है जितना आपको फंड मैनेजमेंट चाहिए. कंसिस्टेंसी उतना चाहिए. बिल्कुल 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 कंसिस्टेंटली, और उतना ही आपका विल पावर जो यूज होता है ना, वो ब्रेन पावर की तरह अगर जो कन्वर्ट करे तो वो उतना ही चाहिए होता है आपको टू बी अ फंड मैनेजर. So one investing rule that you will never break. Never get carried away by market stories, by rumors. Have your conviction in your stock. वही जाके आपका बन सकता है. And be consistent. Okay. In one word, what does money mean to you? One word. It doesn't mean success. That I'm sure of. It just I don't know what word to use. मैं हिंदी में नॉर्मली बोलता हूँ हाथ का मैल है. आता है और जाता है. पर I don't have a word for that, so that way I'll leave it here. But it definitely doesn't mean success. It means that you have achieved something, but not success. Not success. You achieved something in your vault. It is just a part of For your success, you have to be a good human being. Right. That's what is paramount. So thank you so much for such an honest conversation. मेरे ऑडियंस को आपका ये जो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगेगा, और उन बहुत सारे टेक अवेज ले पाएंगे वो. थैंक यू. थैंक यू सो मुझे मच. भी बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत ही अलग अलग सवाल पूछे. दिस इज व्हाट आई से कि जो यंग हमारी जनरेशन है वो बहुत ही अलग सोचती है, तो वैसे ही आपकी सोच है. सर, ट्राइंग टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू गाइस, दैट्स इट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. I hope you enjoyed this conversation as much as I did. ऐसे ही और इंस्पायरिंग टॉक्स के लिए don't forget to like, share and subscribe. मैं हूँ यश डागा, signing off until next time. Keep investing, keep growing.